علی مت لوٹ کے آنا اب. تمہارے مقدر میں تمہارے بیٹے کی کوئی خوشی نہیں. صبر. کہاں تک صبر کروں؟ کیا کور کنارے تک صبر کرتی چلی جاؤں؟ خوشی ملتی ہے تو آنسو میں ڈوبی ہوئی، سہارے ملتے ہیں تو ٹوٹنے کے لیے، بچھڑنے کے لیے. کیا زندگی گزاری ہے میں نے بھی. ایسا تو کوئی گناہ بھی مجھے یاد نہیں خدایا جس کی اتنی لمبی اتنی کڑی سزا مجھے میرے بچے کو ملی ہے. صبر کرو حسنہ بی بی، صبر کرو. تم تو بہت صبر والی ہو. یہ تو نیک خوشیوں کا وقت ہے اور فاروق میاں کی خوشیوں کی گھڑی ہے. چلو قاضی صاحب آ گئے ہوں گے، چلو آ جاؤ. تھوڑا سا پانی پی لو، تھوڑا سا. نہیں بنیادی کو، صبر کی جگہ میں نے پتھر کی سل رکھ لی ہے. چلیے. السلام علیکم بھائی ممتاز احمد. وعلیکم السلام. آغا جی آپ نے جو کچھ مجھے سمجھایا تھا میں نے قاضی صاحب کو بتا دیا. جی بھائی عماد الدین، آج ہماری آپ کی دوستی کی آزمائش کی گھڑی ہے. آپ اطمینان رکھیں، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو. یہ مرزا کہاں رہ گئے؟ وہ بکر سے کچھ باتیں کر رہے ہیں. اچھا آئیے تشریف لائیے. اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. ہر کام میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے. حسنہ بی بی آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ قاضی صاحب آ گئے ہیں، آپ چلیں ہمت سے کام دیں. بھائی مرزا مغل مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو. بھائی سب کو مبارک ہو. بھائی ممتاز احمد آپ کو مبارک ہو. جب تک میں زندہ ہوں پردہ داری کرتا رہوں گا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ نکاح ہو چکا. اب جتنا جلد رخصتی کا فریضہ ادا ہو جائے اتنا ہی لڑکی کے حق میں اچھا ہوگا. ٹھیک. بھائی عماد الدین، کوشش تو یہی کروں گا کہ جیتے جی بہت جلد افشاں فاروق کو ان کے گھر میں آباد کر دوں. مناسب. اور اگر مر گیا تو یہ کام احسن عابد اور آپ کے سپرد ہوگا. بس اب میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ رب العزت آپ کی عزت کی حفاظت فرمائے. بڑے سرکار، وہ محسن میاں کراچی سے آ گئے ہیں جی. عبداللہ اب شام تک نصیرہ بیوی کے گھر سے چچی جان کو لے کر مت آنا. جی ان کو روکنا ہمارے بس کی بات نہیں بیگم صاحب جی. میں اور بنیادی بڑی مشکل سے جان چھڑا کے آئے ہیں. ہاں بیگم صاحب صحیح کہہ رہے ہیں عبداللہ اور بھائی. یہ نہیں سوچا تم نے کہ تم دونوں چلے آؤ گے تو کرایہ کا تانگا کر کے چلی آئیں گی. جاؤ بنیادی اسے لے جاؤ، وہاں جا کے چھوڑ کے آؤ. میں نہیں چاہتی کہ محسن صاحب کا اور چچی کا آمنا سامنا ہو جائے. دیکھیں بیگم صاحب جی، یہ دوبارہ پہ پرچی پہ لکھ کے دے دیں. ویسے ہمارا کہنا کہاں سنیں گی وہ. میرا سر پھٹا جا رہا ہے. بنیادی کچھ ہی کر لینا اور کچھ نہیں تو تازی میری پیس کے ان کے سر پہ تھوپ دینا، لیکن شام تک ٹلنے مت دینا انہیں مار سے. ٹھیک ہے بیگم صاحب آپ فکر مت کریں، میں ان کو روک کے رکھتی ہوں. چلو عبداللہ بھائی. چل بھائی. بیگم صاحبہ ایک شکایت کرنی تھی آپ سے. کیا؟ یہ عبداللہ بھائی گھوڑے کا گوڑ کے گلگلے تل کے کھا جاتے ہیں. وہ فوتو میں گلگلوں کی پڑی، میرا سر پھٹا جا رہا ہے. بیگم صاحب یہ دیکھیے وہ بنیادی آپ- چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا رہتا چلو ہے. چلو جاؤ کام دیکھیں کرو. بیگم صاحب بچوں کی طرح یہ لڑتے آج رہتے ہو، بیگم شرم صاحب نہیں میں آتی. تو چھوڑوں گی نہیں. آج تو تیری خبر عبداللہ بھائی چھوڑوں گی، چھوڑ کے آؤ. میں کہہ دیتی ہوں کہ بھائی کچھ ہی دن جاتے ہیں کہ میں تو اب تمہارے گھر آ کے پڑ جاؤں گی. حال ہمارا کی محبت میں بہت دن رہ لی ممتاز احمد کے گھر. اب تو ہم بھاری ہو گئے ہیں. ارے چچی جان، میرے سر آنکھوں پر آپ ضرور آئیے. اب تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی بھتیجی کے پاس سب کچھ ہے. آپ کی دو روٹی مجھ پہ بھاری نہیں ہے. آئیے. نصیرہ جی بنیادی لگ گئی ممتاز احمد کے گھر کیا؟ کمشنر. دیکھو تو کم بخت کو باہر سے دروازہ بند کر کے خود چلی گئی. اب جو میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتی ہوں تو دروازہ بند. تو مگر چچی جان آپ کے کمرے میں تو طیبہ بھی ہوتی ہے. ہے اپنے کمرے میں سو یہی کون تھا.
है बेटी, सारी रात न जाने क्या मिसकोटें हो रही थी। एहसन, आबिद और वो कमबख्त का क्या नाम है भला सा, है वही खुशामदी, ऐ मिर्जा। अच्छा अच्छा, हाँ। हेलो, वो तो शाम ही से डटे हुए बैठे थे घर में। तो इसका मतलब ये है कि कोई खास बात थी। रशीदा, बेटी रशीदा कहाँ है? वो खाना पका रही थी। रशीदा बेटी, एक गिलास पानी तो मुझे पिला जा बेटी। और हाँ, देखना वो अब्दुल्ला तागा लेके आया कि नहीं। जान, एक बात ये है कि ताई अम्मा आपसे कोई बात कभी छुपाती नहीं है। अरे नसीरा, अब मेरी जबान न खुलवाओ। ये बेटी, हम तो इधर उधर की सुन लेते हैं। आलमारा की नजरें अब औलाद के सामने बदल जाती हैं। ये लो, मुझे कमरे में लिटा के खुद नीचे उतर गई। और उस बुनियादी कम बखत को देखो, ये लो, देख से ज्यादा चमचा गरम, बाहर से दरवाजा बंद करके गायब। चाची जान, इसका मतलब ये है कि जरूर कोई गड़बड़ थी कि सबके सब तो नीचे उतर गए और आप अकेली ऊपर बंद कर दी गई। आए है खुदा खबर क्या मिसकोटें हो रही थी। मैं तो जानती हूँ कि जरताज के खिलाफ कोई मुहास कायम किया जा रहा है। अच्छा, और भाई जरताज का भी तो पागलपन देखो कि तार पे तार, खत पे खत, तार पे तार, खत पे खत भेज के सारे घर में हलचल मचा दी। आखिर क्यों? भाई बच्ची को बुला रही हैं। है तो क्या हो गया, इसमें भेज दे अफशा को। वाह वाह वाह, हुस्ना ने पाल पोस के इतना बड़ा किया। आए वो तो हुस्ना के हाथ का बर्तन है, आधे घर का धंधा तो वो निपटाती है। पैसे भेज दें उसको कराची। और फिर नसीरा, अब क्या कहूँ, ये घुटना खोलूं तो लाज, वो घुटना खोलूं तो लाज। रात भर तो घर में खिचड़ियाँ पक रही थी और सवेरे ही मोहसिन आजम के। अच्छा, लो भाई, सबकी सिट्टी घूम। मैं जिस शख्स का नाम सुनना पसंद नहीं करता आगा जी, आप उसके लड़के के साथ अफशा का रिश्ता करना चाहते हैं। हाँ, मुझे तुम्हारे और अली के इख्तिलाफात से कोई सरोकार नहीं। अगर तुम अफशा की तरबियत से चश्मपोशी कर सकते हो तो मैं भी उसकी तकदीर के फैसलों में तुम्हारा पाबंद नहीं। तुम अगर बच्ची को ले जाना चाहते हो तो ले जाओ। तुम्हारी बीवी भी अब उसे मेरे पास छोड़ना नहीं चाहती। बहरहाल अफशा का रिश्ता फर्क से होगा। नहीं आगा जी, नहीं। मैं आपके हुक्म के सामने सर झुकाता हूँ, लेकिन ये काम नहीं हो सकता। बैठ जाओ मोहसिन, इस कदर जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं, आगा जी को समझाइए। आगा जी, खुदा के वास्ते जिद छोड़ दीजिए, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे तुम्हारे साहिब अक्ल होने में अब भी शक है। आगा जी, काश उन तमाम शकूक की, उन तमाम वसवसों की, उन तमाम अनहोनी बातों की कोई शक्ल होती जो मैं आपको दिखला सकता। आगा जी, काश आप मेरे साथ नाइजीरिया में होते तो ये फैसला हरगिज न करते। आगा जी, अगर आप मेरी जिंदगी चाहते हैं तो ये बात भूल जाइए। मुझे क्यों शर्म आ रही है? मैं देखूंगी तो जरूर। दादा, हाँ बिटिया। दादा, अबू है ना घर में? हाँ बिटिया, हैंगे। मियाँ खड़ी हो जाओ। हाँ हाँ, जरूर खड़ी हो जाओ बिटिया। ये हरे भरे दरख्त की छांव खुदा ने तेरे ही लिए बनाई है। अफशा, नहीं अबू, नहीं अबू, अबू, अबू मुझे डराए नहीं। बिटिया, नहीं, बिटिया, नहीं अबू, नहीं अबू, बिटिया। तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया था बेटी। बिटिया, साहब तुम्हें बुला रहे हैं। नहीं दादा, नहीं दादा, दादा डांटेंगे। क्यों डांटेंगे बिटिया? चलो आओ। उसे खुद आने तो दिनू दादा। अच्छा, जाओ बेटा, जाओ, जाओ, जाओ। मैंने मम्मा से भी माफी मांगी थी। अब मैं आपका कभी इंतजार नहीं करूंगी यहाँ खड़े होके। अब तुम्हें मेरा इंतजार नहीं करना पड़ेगा अफशा बेटी, मैं बहुत जल्द तुम्हें ले जाऊंगा। लो ये लॉकेट। मेरे लिए लाई हैं? पसंद आया?
पसंद नहीं आया बेटी? पसंद तो आया है, लेकिन जो सबसे ज्यादा पसंद आया ना वो ये है कि आप इसी तरह थोड़ी देर मेरे सर पे हाथ रखे रहिए। बिन मौसम बादल बरसते हैं तो फसलों को नुकसान पहुंचता है। अच्छा बेटे, वो तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे लिख देना, मैं ले कब आएंगे अब्बू? बहुत जल्दी। पप्पू अब्बू ने मुझे प्यार कर लिया, आपको पता है? बिल्कुल सच कह रही हूँ। और उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और फिर उन्होंने सर पे प्यार भी किया, बिल्कुल इस तरह पप्पू। यकीन नहीं आ रहा। हमारा मुगल जहाँ तेल होता है वही चिराग जलते हैं। अब ये कैसे मुमकिन है कि बाप के दिल में बेटी का प्यार ना हो? देखा कितनी खुश थी हमारी बेटी। अम्मी, अम्मी, क्या है? मुझे मेरे निकाह वाली अंगूठी चाहिए। मगर क्यों? अम्मी, मुझे भी तो महसूस होने दे कि मेरा निकाह हुआ है। मुझे डर है फारूक कि अगर तुम्हारी जबान से कुछ निकल गया तो इस घर में कयामत आ जाएगी। जबान मेरे बस में है या मैं जबान के बस में हूँ? मैं इतना जरूर चाहता हूँ कि मोहसिन मुमताज साहब इस अंगूठी को मेरे हाथ में जरूर देख लें। पागलों की सी बातें कर रहे हो आज तो तुम। अम्मी, इससे पहले कि अफशा उन्हें बता दे, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि मैं खुद अर्ज कर दूं कि मैं कानूनी तौर पर उनका दामाद हूं? फारूक, तुम मर्द सही, मेरे बेटे सही, लेकिन क्या माँ से भी बात करने में एक हिजाब जरूरी नहीं होता? तुम्हें जुर्रत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? हाँ, जरा मुझे ये बताओ कि अफशा किस तरह बता देगी? हाँ 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 अम्मी, अफशा इतनी भोली नहीं जितनी दिखाई देती है। हवासों में हो तुम? वो चंपे के दर्द के पास जा जाके यूं ही तो नहीं खड़ी होती थी अम्मी। वो तो क्या हो गया है तुम्हें? कुछ हुआ है अम्मी, कुछ हुआ है। अपने बाप के दुश्मन को अफशा के इतने करीब देखकर मुझे यूं महसूस होता है, मुझे यूं महसूस होता है जैसे वो पिछले 17 वर्षों से मुझे और आपको बेवकूफ बना रही थी। पप्पू, अब्बू ने मुझे सर पर प्यार किया है और ये देखे ये लॉकेट भी दिया है। अब्बू सचमुच मेरे अब्बू। छोटी जान तो यूं ही झूठ बोलती रहती है। अल्लाह का शुक्र है अफशा, तुझे तेरा खोया हुआ बाप मिल गया। बेटे, अब दुआ मांग कि मेरे फरूक को उसका बिछड़ा हुआ बाप मिल जाए। फरूक है के पता नहीं क्या बोल रही है। पप्पा जिंदा तो है ना? हाँ, मेरा दिल कहता है वो जिंदा है। बस खुदा से मेरी ये दुआ है, वो जहां हो, जिस हाल में हो, जिंदा सलामत रहे। बात क्या चीज है मिस्टर डेविड कॉहन? मैं तो उन लोगों में से हूं जो परेशानी और मुसीबत को जिंदगी का हिस्सा समझकर कबूल कर लेते हैं। आपकी और आपकी बेटी की वजह से मैं किन किन अजाबों से गुजरा हूं, आप हो क्या बता? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था मैंने? ये तुम बोल रहे हो वली? यकीन नहीं आता। जी, ये मैं बोल रहा हूं। ओह, आई सी। तो मुझे जवाब देना ही पड़ेगा। अगर मुसलमानों को धोखा देना और झूठ बोलना मेरा उसूल ना होता तो मैं तुमसे गिड़गिड़ा कर माफी मांगता। मैं तुम्हारी अजमतों को सलाम करता हूं अली। यू नो इट, ऑफ कोर्स यू नो इट, यू मस्ट नो इट। हम यहूदियों की दीन ईमान हमारी दुनिया है। तुम्हारी दुनिया की आसमानी, आफाकी और इंसानी कदरें हमारे इंटरेस्ट के सामने बेमाना है। डू यू फॉलो मी? Yes, Mr. David Cohen, I follow you word by word. और मैंने भी आज 18 बरस में ये पहली बार जो जरूरत की है।
کہ آپ جیسے ہپوکریٹ لوگوں کی انا کا ہول بے رحمی سے توڑ کر ان کو ان کا چہرہ دکھا سکوں. آئیے آپ کی بات سمجھ میں. مگر ڈیوڈ کون، پچھلے 22 برس سے ایک سوال میرے ذہن میں گونج رہا ہے، اور آج وہ سوال میں تم سے کرنا چاہتا ہوں. اگر تم اپنی بیٹی کو یہودی نہیں بنا سکے تھے دوبارہ، تو پھر تم نے اس کا گھر ایسے وقت کیوں اجاڑا جب محسن میں اور اس میں انڈرسٹینڈنگ اور رکھ رکھاؤ پیدا ہو گیا تھا؟ ڈیوڈ، شادی تو ہو چکی. محسن نے میری بیٹی کو بے وقوف بنایا. اوہ نو، ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے یہی کہتا ہے. آپ کو صرف محسن کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. آپ کی بیٹی نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا تھا، اور آپ کے مذہبی جنون سے انتقام لینے کے لیے. خاموش ہو جاؤ علی، تم میرے ماتحت رہ چکے ہو. اچھا یاد دلایا آپ نے، بہت اچھا. میں خاموش ہو جاؤں ڈیوڈ کون صاحب، اس لیے کہ آپ اتنا بڑا سچ برداشت نہیں کر سکتے. ویری گڈ، ویری گڈ، بہت خوب. میں چپ ہو جاؤں اس لیے کہ مسٹر ڈیوڈ کون اپنے بندار کی شکست کی آواز نہیں سن سکتے. میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں علی. یو ڈونٹ ہیو ٹو ٹاک ٹو می ان دیٹ ٹون. مجھ کو تو تم سے اس لہجے میں بات کرنے چاہیے ڈیوڈ کون کہ صرف سچ نہیں بلکہ تم ہر بات سننے سے خوف زدہ ہو جاؤ. میری طرف دیکھو، تمہیں پتا ہے تم کتنے خبیث آدمی ہو، تم کتنے ظالم آدمی ہو. تمہاری وجہ سے 3 معصوم بچے ماں باپ کے سایوں سے محروم ہو گئے. ٹرپلٹس؟ نہیں، میری بیٹی کے تو ٹوینس تھے، 2 بچے تھے. یو کانٹ بلیم ہر. میں اپنے بیٹے کا ذکر کر رہا ہوں. میرا ایک بیٹا ہے ڈیوڈ کون، میرا ایک بیٹا ہے. تمہاری سازش کی وجہ سے جس کو میں 22 برسوں سے نہیں دیکھ سکا ہوں. 22 برس گزر گئے کہ میں نے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا. پتہ نہیں اب دیکھوں گا تو مجھے پہچانے گا کہ نہیں پہچانے گا. امریکہ سے بلوا کر تم یہاں میری بے عزتی کر رہے ہو. کیا؟ ڈیوڈ کون صاحب، آپ کے خیال میں نے آپ کو زحمت دی ہے امریکہ سے تشریف لانے کی یہاں؟ آپ کو بتاؤں کہ آپ یہاں کیوں تشریف لائے ہیں. آپ یہاں پر اپنے نواسے راہیل کی بینک بیلنس اور جائیداد کے انٹرسٹ میں آئے ہیں، اور آپ یہ دیکھنے آئے ہیں کہ آیا مسلم افریقہ میں اب بھی آپ کے لیے کوئی گنجائش ہے کہ نہیں. بولیے. میں تم سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ ہاں، آپ مجھ سے سوال کریں گے. وائی ناٹ، وائی ناٹ. 18 سال سے میں اپنے ذہن کے گوشے میں یہ سوال لیے گھوم رہا ہوں. تم نے راہیل کی پرورش کی ذمہ داری کیوں قبول کی؟ وائی؟ وائی؟ میرا بھائی کا بچہ ہے. وائی؟ تمہیں پتا ہے اگر تمہاری بیٹی راہیل کو میرے سپرد نہ بھی کرتی تو بھی میں اس کو تمہارے سپرد نہیں ہونے دیتا. تو لے گئے ہوتے اسے پاکستان، دے دیا ہوتا اس کو، اس کے باپ کو. کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ تم 18 سال صرف میری بیٹی کے انتظار میں یہاں بیٹھے رہے ہو علی. خبیث آدمی، تم نے مجھے اس قابل کب رکھا تھا کہ میں راہیل کو پاکستان لے کے جاتا؟ کب رکھا تھا تم نے مجھ کو اس لائق؟ تم نے میرے بھائی کے دل میں میرے خلاف نفرت و زہر کا بیج بو دیا تھا. تم نے اور تمہارے زر خرید غلاموں نے میرے بھائی کو یقین دلایا تھا کہ زہر مجھ سے نہیں، مجھ سے محبت کرتی ہے. Now you understand. And he, the stupid fellow, believed it. اس لیے کہ میرے بھائی کا ذہن تم جیسا شیطانی ذہن نہیں تھا. بیشتر اس کی کہ میں اپنے حواس کھو بیٹھوں. I request you to please get out. Please leave this house. بائی دا وے، مجھے یاد آیا، راہیل نے تمہارے ساتھ پاکستان جانے کا پروگرام کینسل کر دیا ہے. وہ پیرس سے سیدھا یہیں آ رہا ہے اور یہیں رہے گا.
मुझे अब तुम्हारी किसी बात का यकीन है ना एतबार? You don't have to go to Blue Heaven. वो वहां से सीधा डायरेक्ट फ्लाइट लेके लागोस चला गया है. हेलो मजीद। हेलो बहन, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। आप लाहौर से कब आए? कल रात आ गया था। जरताज कहाँ? गौहर जवाहिर को लेने कॉलेज गई हैं, आती ही होंगी। अच्छा मजीद, मैं थका हूँ, जरा 15 मिनट आराम कर। भाई हलवीन सर। तुम पाकिस्तान सेटल होने आए हो या किसी बिजनेस ट्रिप पर? सोचता हूँ भाईजान यहीं रुक जाऊं। मामा पापा भी बहुत बूढ़े हो गए, वैसे कुछ बिजनेस भी, कुछ प्लानिंग भी। वेरी गुड। साहब आपकी डाक। अली, मोहसिन, दुआएं। 18 वर्ष बाद खत लिखने की जुर्रत कर रहा हूं, वो भी सिर्फ इसलिए कि अगर मैं तुम्हारी मोहब्बत का दावेदार नहीं तो तुमसे नफरत भी नहीं कर सका। मेरे पाकिस्तान पहुंचने से पहले इस खत का पहुंचना तुम तक बहुत जरूरी था। मैं तुम्हारी एक अमानत अपने साथ लेकर आ रहा हूं। तुम्हारे जुड़वा बच्चों में से एक बेटा राहील। मुझे यकीन था कि डेविड ने तुम्हें धोखा दिया है। कोई साहब आपसे मिलने आए। मैं इस वक्त किसी से नहीं मिल सकता, दरवाजा बंद कर दो। बहुत बेहतर। न नजमुस सहर मरी थी न तुम्हारा बेटा। नजमुस सहर और डेविड इस वक्त भी नाइजीरिया में मेरे घर में मौजूद हैं। राहील की तालीम खत्म होने में अभी सिर्फ 2 बरस रह गए हैं, लेकिन वो इस साल अफ्रीका में। अरे आप इतनी जल्दी आ गए दफ्तर से? मुझे कोई बहुत जरूरी काम था। जरताज, मुझे थोड़ी देर के लिए तन्हा छोड़ दो प्लीज। ठीक है, जा रहे हूं। लेकिन वो इस साल अफ्रीका में डेविड कोहन की पूरी जायदाद और स्टेट्स का मालिक बन चुका है। मैं चाहता हूं कि वो तुम्हारी सरपरस्ती में आ जाए। मेरी और राहील की बुकिंग हो चुकी है। हम 1 अगस्त तक अफ्रीकन एयरवेज की फ्लाइट से कराची पहुंच रहे हैं। मैंने लाहौर वालों को अपने पहुंचने की इत्तला मसलहतन नहीं दी। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए रत्ती बराबर भी जगह हो तो मुनासिब अंदाज में घर वालों को खबर कर देना। तुम्हारा अली। मेरा बेटा, मेरी बीवी दोनों जिंदा हैं। डेविड, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? अली, तुम इंसान हो या फरिश्ते? मैंने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया और तुमने इस बदसलूकी की खबर भी मुझे अपनी सजा बनाकर दी। कितना छोटा इंसान हूं मैं। एक
बहार अली मुझे मिल जाएं तो उनके कदमों पर सर रखकर माफी मांगूंगा। क्या किया है मैंने और क्यों किया ये सब कुछ? खोखली सतही अंग्रेजियत का शिकार होकर मैं अपने आप से निकल गया था और अब तक पछता रहा हूं, सिवाय पछतावों के और मेरे पास है ही क्या। भाई खुदा का वास्ता जवाब दे दो ना मोहसिन, वो कोई तुम्हारा मौकिल है, घंटा भर से फोन कर रहा है। मैं इस वक्त किसी से नहीं मिल सकता। कहाँ जा रहे हैं आप? एक जरूरी काम है मुझे। लाहौर जा रहे हैं शायद फिर? शायद। छोड़ो यार हसन, जब बंदा वापस ही नहीं आ रहा तो अफशा और फरूख के निकाह में फसाद कैसे खड़ा कर सकता है? मुझे तो फिक्र मोहसिन की है। मिर्जा चचा बता रहे थे कि मामू मियां से मोहसिन साफ इनकार कर गया है। यार बहुत ही बुरे फंसे हैं हम तो। नहीं, अगर तुम नहीं बता सकते तो मैं बता देता हूं मोहसिन को। मेरा ख्याल है कि बहुत ही सोच समझ के बात करनी चाहिए और इस निकाह को उस वक्त तक राज में रखना चाहिए जब तक कि शहरियार का कोई फैसला नहीं हो जाता। हो सकता है शहरियार उसमें खुद दिलचस्पी ले रहा हो और जरताज को कुछ इल्म ही ना हो इसका। तो क्या खुफिया साजिश हो रही है हम दोनों के खिलाफ? जरा हम भी तो सुने। बैठे तो सही। भाई वो सीक्रेट क्या सीक्रेट रह सकता है जिसका कि आपको और आपकी अजीज जान भाभी शौकत को इल्म हो जाए? आप तो हमसे छुपाते रहे, लेकिन हमें पता चल गया कि रात 2 बजे तक 4-5 दिन पहले आप लोग मुस्लिम टाउन में क्या कर रहे थे। बड़ी जासूस तुम दोनों, क्या पता चल गया? भाई कोई नई बात तो हुई नहीं। नुमानी अम्मा का परेशान चेहरा देखकर हम दोनों समझ गए कि मोहसिन कराची से आए हैं और वो जरूर कोई ना कोई गलत बात करके गए। भाई हमने तो अम्मा से साफ कह दिया है कि फर्रुख की शादी के बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी बेटियां हैं, लेकिन हम तो ये सोचकर खामोश रहे कि हुस्ना अफशा को बहू बनाकर खुश होंगी। वैसे रोशन भाभी ने और मैंने ये फैसला किया है कि आगा जी को समझाकर हम अफशा को कराची जरूर भेजें, इसलिए कि जब तक वो बच्ची मोहसिन से दूर रहेगी परेशानियां बढ़ती ही जाएंगी। बड़े बड़े फैसले कर लिए हैं आप दोनों ने। भाई हमारी चमन और शौकत भाभी की फरहत, हुस्ना जिसको चाहे बहू बना ले, सच्ची बात है। भाई घर की सल्तनत में ये सीक्रेट सर्विस कभी कामयाब नहीं होती। बड़े साहब टेलीग्राम आया। अल्लाह खैर। अरे पढ़ने तो दीजिए, पहले ही कह दिया अल्लाह खैर। भाई खुशी की खबर भी तो हो सकती है। आबिद, क्या बात है? अली रजा पाकिस्तान आ रहे हैं भाई। अच्छा, कब आ रहे हैं? 1 अगस्त को। अली उतार दिया है? नहीं, मोहसिन ने भेजा था। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अम्मा सुनेंगे तो कितनी खुश होंगी ये शौकत भाभी। मुबारक हो भाई। कहाँ हो भाभी साहबा? आपको भी मुबारक हो। कहाँ है आगा मुगल? आगा मुगल, अब तो तुम भाई 200 बरस से कम नहीं जियोगे। खुदा ने हम गुनाहगारों की भी सुन ली भाई। अम्मा वो कहाँ है हमारा बेटा फर्रुख? अरे भाई सारी खुशियां इकट्ठी मिल रही हैं। कल उसकी एयरफोर्स से कॉल आ गई थी, रिसालपुर गया हुआ है, अब आकर बाप की खुशखबरी सुनेगा। तो अब तो तुम पर 8 गुनी मिठाई चढ़ गई है। भाई दोनों खुशखबरियां एक दूसरे से कम नहीं है। बड़े सरकार वो राजमिस्त्री को ले आया हूँ, तो पहले कलई कोठी में होगी ना? हाँ, पहले कलई होगी बक्का। अरे मेरा बस चले तो सारे शहर में चिरागा करवा दूं। हाँ बक्का, बस तुम यूं ही रहे। देखो ना, वो दीनों की दुआएं काम आ गई। सरकार ये बात न कहें, दुआएं तो हमारी भी शामिल हैं। अरे बक्का हैं, दीनू हैं, बुनियादी हैं, अब्दुल्ला हैं, मेरे मुलाजिम मुझे भी औलाद से कम नहीं है। भाई मेरी जिंदगी के बहुत कठिन लम्हे मेरी औलाद के सहारे नहीं, इनके सहारे गुजरे हैं। सरकार, हुस्ना बिटिया की पालकी को कंधा देकर ससुराल छोड़ने गए थे मेहता जी। 22 बरस तक हमने बिटिया को रोते ही देखा, लेकिन सरकार
آج آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہیں. ہمارا دل کتنا خوش ہے سرکار. بھائی بات ہی ایسی ہے. حسنہ خالہ اب ابھی تک تیار نہیں ہوئی ہے. امی نے مجھے سارے زیور دے کے بھیجا آپ کو تیار کرنے کے لیے. گلشن باولی ہوئی ہو, تمہاری امی تو عجیب و غریب باتیں کرتی. بیٹھو تم یہاں پر. نہیں خالہ آج تو آپ تیار ہو رہی پہن لینا. ارے تم بھی بول رہی ہو, اور تم چوڑی لیے کیوں کھڑی ہو؟ خالہ جان یہ تو پہنی نا چوڑیاں تو. تم سب لڑکیاں باولی ہو گئی ہو. پتہ نہیں تمہاری ماں کیسی باتیں کرتی ہے. گلشن, چمن, نکمی لڑکیوں, اتنی دیر سے خالہ کے پاس ابھی تک تیار نہیں کیا تم نے. لاؤ ہمیں تو ہم خود کر لیں گے تیار. بیکار کہیں کی. ہٹو بتے. تم آج کا دن بھی اتنی سیدھی سادی ہو کر بیٹھی. کیا کروں, اتنے تو میں خوش ہوں. خوشی کے اظہار کے لیے اور میں کیا کروں؟ کیا کروں؟ پہلے تو یہ اپنے سفید بال رنگو. غضب خدا کا, اماں چچجان خضاب لگاتی ہیں, یہ ایسے بیٹھی. چلو تیار ہو چل کے. کچھ تو خیال کیجئے روشن آپا, بچیاں کھڑی ہیں. بھئی اس نے بچیوں کا کیا ہے, ماشاءاللہ بچیاں سمجھدار ہیں, سب سمجھتی ہیں. پھپھو اس نے پھپھو کو بالکل ویسے دلہن بنایا جیسے پھپھو نے مجھے. بڑی بدعقل لڑکی ہے. روشن آپا, ایک میں نے ذرا کام والا دوپٹہ اوڑھا کے اس کو دکھایا تھا کیسی لگ رہی ہے, تو سمجھے میں نے اسے دلہن بنا دیا ہے. ارے خیر چھوڑو. گلشن جاؤ خالہ کے کپڑے نکالو. چلو بھائی ہم تمہاری چوڑیاں پہناتے ہیں. روشن آپا ایک بات کہوں. ہاں, عبداللہ نے تاغا تیار کر لیا ہوگا, میں نصیر آپا کو خوشخبری دے آؤں. جائیے. شکریہ جناب. حسنا, ارے مجھے کیسی خوشخبری سنائی میری بہن. ارے جیتی رہے میری جان, تو جیتی رہے. ارے میرے مولا ہے, یہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, یہ کیسا اپنا ابر کرم برسایا ہے. ارے حسنا میں تیرا منہ گھی شکر سے بھر دوں میری بہن. تجھے کیسی خوشخبری سنائی. جیتی رہے. مٹھائی کہاں رکھوں؟ رکھ دے یہی رکھ دے. اور چمپا کے پھول لے گئے ابھی آیا. یہ ابھی تک پگلا چمپا کے پھول لائے گا. میں موسم دیکھ رہی ہوں. اے حمیدہ کے ابا, ارے تمہاری شکل پہ 12 کیوں بج رہے ہیں؟ کم سے کم میرا حسنہ کے دل رکھنے کے لیے ہی کچھ مسکرا دو. تم کہتی ہو تو مسکرائے لیتا ہوں, ویسے یقین نہیں آ رہا. نصیر آپا ایک بات کہوں. ہاں یقین میرے دل کو بھی چل نہیں آ رہا. پگلی, ماما کے لیے یقین نہیں آ رہا. دیکھو جی اس وقت ایسی بری باتیں مجھ سے مت نکالو. ہاں آج تو خوشی کا دن ہے. دیکھو خدا کی شان دیکھو, محسن نے مجھے مبارکباد کا تار بھیجا ہے. دیکھو اسے کہتے ہیں خون کا رشتہ. آخر کیوں نہ ہو, دیکھ لیا تم نے, دیکھا. اس کے مرنے کی خبر آتی تو خوش ہوتا, وہ تو جیتا جاگتا چلا آ رہا ہے. ارے تم کہاں چلے؟ بات سنو, تم مجھے 1 کلو مٹھائی کا ڈبہ لا دو. نہیں 1 کلو نہیں, 5 کلو کا ڈبہ لانا. میں نیاز دلواؤں گی خوشی کی, اور سارے محلے میں بٹواؤں گی. منگوا لو کسی سے, مجھے بہت کام ہے. اشفاق بھائی, آپ کو علی کے آنے کی کوئی خوشی نہیں ہے؟ ہم تو تمہیں دیکھ کر خوش ہو لیتے ہیں. خدا حافظ. بکر یہ ٹوکرے اماں کی طرف لے چلو. چلو. ارے سلام روشن جی. اچھی ہو. السلام علیکم. بھائی وہ مٹھائی کے ٹوکرے بھی آ گئے, مگر وہ بارات کی دلہن کہاں ہے؟ وہ بھی آ گئی, دیکھیں تو. اوہو, اللہ عابد بھائی, آپ تو مجھے مت چھیڑیے. تم علی کو کل ایئرپورٹ پہنچنے تو دو. اگر اس کے گلے میں نوٹوں کے ہار نہ ڈالے اور اس کو گھوڑے پر نہ بٹھایا تو میرا نام بھی عابد حسن نہیں. اور آج اپنی دلہن کو ہم پکڑ کے لے کے جائیں گے. حامد یہ گھوڑا ہے, تمہیں اتنا نہیں پتا یہ 2.5 چالیں چلتا ہے, 1 2 2.5, اور تم اپنی مرضی سے 3 چالیں چلے جا رہے. شاید بھائی نانا اسی کو چلتے ہیں. آداب نانا. یہ کیا یعنی تم اٹک سے آ بھی گئے اور اٹک بھی گئے ہماری ہی شطرنج پہ. آغا مغل, اب تم اپنی نئی امت پہ ہماری شطرنج چھوڑ جاتے ہو یار. تم ہی نے ان کو لت لگائی ہے, نام میرا لے رہے ہو. اما ہم تو علی میاں کے استقبال کے لیے آج ہی آ گئے ہیں تمہارے ہاں. وہ فروخ کہاں ہے بھائی؟ وہ بڑا سائیکل کے پہیوں کی ہماری ہوا نکالتا تھا نا, اب ہم اس کے ہوائی جہاز کے پہیوں کی ہوا نکالا کریں گے. آداب مرزا نانا. جیتے رہو بھائی. ایک ساتھ ہی ساری خوشیاں سمیٹ لی تم نے تو ہیں. ابو کو بھی بلوا لیا اور خود سلیکٹ بھی ہو گئے. آپ کی دعائیں مرزا نانا, بس یوں ہوا ہے میرا سلیکشن اور بغیر کوئی زور لگائے. زور لگانے کی کیا ضرورت تھی میاں؟ ویسے یوں جو کہہ رہے ہو کہ ہوا ہے وہ صحیح ہے, اس لیے کہ بال ابھی تک تمہارے اتنے ہی لمبے ہیں. ابھی میں نے ڈیوٹی پہ رپورٹ کہاں کیا ہے مرزا نانا, اب تو دونوں اکٹھے بال کٹائیں گے. یعنی کہ ہم بھی اچھا
मजाक करने लगा है। अब्दुल्ला भाई, बुनियादी तुम भी आ जाओ। आ रही ए बिटिया, थोड़ी छाली देना, मेरे पास छालियाँ खत्म हो गई है। एक काम करना, मुंह में पान ना हो तो काम नहीं होता मुझसे। अम्मा, अल्लाह ने आपकी सुन ली है, खैर से अली घर आ रहे हैं, अब तो आप खुश है ना? हाँ बेटी, अल्लाह का बड़ा करम है। अम्मा, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आपका जी तो अच्छा है ना? बस वो सिर में रह रह के ऐसी टीसें उठती हैं बेटी कि जैसे दम निकल जाता है। बहुत दर्द हो रहा है अम्मा, लाइए हम तेल डाल दें। अच्छा, आबिद, जरा एक मिनट बात सुनो। कहाँ जा रहा है? हुस्ना जी, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्होंने बताया भी नहीं। रोशनापा, आपकी खुद इतनी तबीयत खराब रही कि मैंने मुनासिब चीज समझा। ये तुम्हारे दफ्तर से कोई डिस्पैचर अर्जेंट तार लेके आया। टेलीग्राम। ये कैसे कैसे कहोगे? आगा जी को कैसे बताओगे ऐसा? पता नहीं पड़ेगा आबिद। हाँ, बताना ही पड़ेगा। मिर्जा नाना, आप भी क्या करते हैं? अरे प्यादा तो चले ना अपना। अम्मा तुम चुप रहो। हाँ, मैं ठीक कह रहा है। तो चलें, घोड़े ही चल दें। अब तुम बोले, तुम हवाई जहाज उड़ाओ जी। अरे मिर्जा नाना सही कह रहे हैं, देखिए ये हुई आपको मात। हाथ हटाओ। कमाल है भाई। अब अम्मा आगा मुगल, ये तुम्हारी नई उम्मत जो है बहुत शतरंजबाज हो गई है भाई। भाई तुम लोग चलो यहाँ से, जाओ, हम लोग अपनी चालें। बेईमानी करके जा रहा, देखा तुमने? देखा, ये भी तुमने सिखाई है। मैं तो कहता हूँ ये सारी साजिश है मेरे खिलाफ ताकि तुम मात से बच सको। मैंने क्या सिखाया? आप शायद बचिए। अम्मा वो भी बच जाएंगे। वैसे फर्रुख बहुत खुश नजर आ रहा है। हाँ। मगर मैं सोचता हूँ इसने अपने बाप को तो कभी देखा ही नहीं, अब देखेगा तो क्या महसूस करेगा? कुछ परेशान तो है। 2 बार मेरे पास आकर कह चुका है कि नाना जान अब वो मुझे पहचान तो लेंगे ना। अरे ऐसा नहीं, आओ भाई आओ। अच्छा हुआ तुम आ गए। मिर्जा साहब ने भी एक कार का बंदोबस्त किया है। अब 4 कारें हो जाएंगी। सारा घर अली के इस्तकबाल को एयरपोर्ट जाना चाहता है। एयरपोर्ट कोई नहीं जाएगा बच्चे। क्यों? अम्मा क्या हरज है, जो जाना चाहता है उसे जाने दो भाई। हम खुद जाने को तैयार बैठे हैं, ऐसी क्या बात है, हैं? क्या बात है ऐसा? तुम कुछ परेशान नजर आते हो मुझे। जी नहीं। क्या बात है आबिद? कह दो मुझसे। मुझ में हर बात सुनने और बर्दाश्त करने की ताकत मौजूद है। कई बार आरज़ुओं के किले तामीर किए हैं और कई बार उन्हें गिरते देखा है। आगा जी, ये बात हमारे लिए अनहोनी नहीं है। अली हमसे पहले भी दूर ही थे। दिल से तो दूर कभी नहीं रहा। मैं तो 22 बरस से कह रहा हूं कि वो आएगा और इंशाअल्लाह वो कल यहां पहुंच रहा है। क्या बात है, तुम लोग मुझसे कुछ छुपाना चाहती हो? क्या है आबिद? आगा जी, वो ये है कि आप खुद ही पढ़ लीजिए। आगा जी,
आगा जी मुझ पर बहुत बड़ा बोझ डाल गए। सब्र करो एहसन, सब्र करो बेटा। अरे सिर्फ दौलत और जायदाद विरासत में नहीं मिलते एहसन, बुजुर्गों के फैसले भी विरासत में मिला करते हैं। अब तो तुम ही इस घर के बड़े हो, अगर तुम हिम्मत हार बैठोगे तो भाभी साहिबा को सहारा कौन देगा बेटा? अरे हमें देखो, औलाद के तरसे हुए, अपनों के तरसे हुए थे। एक आगा मुगल को अपना समझते थे। जिंदगी में सैकड़ों बार शतरंज में उन्हें मात दी है, लेकिन हमारी बदकिस्मती सिर्फ जिंदगी की बिसात पर वो हमें मात दे गए। सब्र करो बेटा, सब्र करो। मोहसिन नहीं आए। दुनिया भर के लोग न जाने कहां कहां से जनाजे में शिरकत के लिए आ गए। हाय, ना आया तो बेटा ही ना आया। मैं तो 22 बरस तक तुम्हें जिंदा समझती रही, घड़ियां गिन गिन के इंतजार करती थी। आज इंतजार खत्म हो गया। अभी मेरा सब क्यों तोड़ दिया? क्यों तोड़ दिया मेरा सब? क्यों तोड़ दिया मेरा सब? जी मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूँ। क्रैश के सर्वाइवल की लिस्ट आ गई कि नहीं? अभी तक नहीं आई। मामा मुझे बताइए ना, मैं क्या करूं पापा के लिए? चुप करो शहर यार, कोई क्रैश हुआ है, मेरे को क्या मालूम? प्लेन का क्रैश हुआ, कौन था कि प्लेन में क्या है कि? मामा पूछना तो चाहिए ना पापा से। तुम नहीं ठहरो, मैं अब भी पूछ के आती। मेरा जवान बेटा, मेरा बहनोई, कैसे सब्र आएगा? आगा जी पे क्या गुजरेगी? डॉक्टर को बुलवाओ। मिस्टर रफीक, मिस्टर रफीक, इनकी तबीयत बहुत खराब हो रही, आप किसी हॉस्पिटल फोन कीजिए, डॉक्टर को बुलाइए फौरन। जी बेहतर है। हम सबसे ज्यादा हिम्मत वाली तो हुस्ना है। हमसे तो अम्मा की सूरत नहीं देखी जाती, उनकी पट्टी से लगी। आप ठीक कह रही रोशन दीदी, हुस्ना दीदी बहुत हौसले वाली है। नहीं पीछे हम बस जाओ, हमारी नक्सीन की दूरी क्या है? नहीं पीछे हम बस जाओ, जाओ नहीं पीछे, कौन हो तुम? जाओ यहाँ से, नहीं पीछे, हमारी नक्सीन की दूरी क्या है? अच्छा अम्मा, अगर नक्सीन कटोरी में ग्लूकोज दे दो मिलेंगी ना? हाँ हाँ हाँ, क्या है अभी मंगवाती। हाँ, किधर है कटोरी? कटोरी, नक्सीन कटोरी जो बामिया लेके आए थे ना, बोले आओ। क्या है कटोरी? जल्दी करो, क्या है हमारी कटोरी? मंगवाई है मशीन वाली। हाँ, क्या है अम्मा? क्या है? ये आ गई। हाँ, यही वाली तो है कि नुमाइश से अब्बा मियाँ लाए थे, मशीन कटोरी। अम्मा को तो न हाल की खबर रही न मुस्तकबिल की फिक्र। हुस्ना, तेरा क्या बनेगा? अम्मा
बदनसीब को इतना बेसहारा मत कर देना। पता नहीं कितनी पहाड़ से जिंदगी अभी मैंने काटनी। मेरे को क्या मालूम मोहसिन को किस बात का शौक हुआ है, बहनों का ही हुआ होगा। आगा जी की डेथ की तो उन्हें खबर भी नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अली मरहूम रवानगी से पहले एयरलाइंस को न सिर्फ मोहसिन का एड्रेस बल्कि यहाँ आगा जी का पता भी दे गया। तार में तो दो नाम है, मिस्टर अली एंड मिस्टर राय। ये ताहिर कौन है? नाम गलत भी हो सकता है। खैर जो कुछ होना था वो हो चुका। खातून आप सीधी कराची रवाना हो जाए। मोहसिन से पूछ के आई हूँ। आगा जी के दस्तों तक तो रहूंगी आबिद भाई। मोहसिन के पास कौन है? बच्चे ही होंगे ना? नहीं, शहरियार है मेरा बच्चा। 4 दिन से सोया नहीं। देखो आप, मोहसिन हूँ बोले तो हाजिर। हाँ सुना है, बहुत प्यारा बच्चा है। हुस्ना और अफशा कहाँ है? हुस्ना बावर्ची खाने में होगी, अफशा ऊपर अपने कमरे में होगी। अफशा किधर रहती थी? कल से मेरे को दिखी नहीं। मैं जरा देख के आती। अल्लाह मियाँ के घर तो सभी को जाना है बिटिया। कोई आगे कोई पीछे। आज बड़े सरकार और अली मियाँ गए हैं, कल कल को हम भी चले जाएंगे। बुनियादी खाना, फर्रुख भाई तो कभी नहीं रोते थे, लेकिन आज रो रो के पागल हो रहे। उन्होंने तो अपने अब्बू को कभी नहीं देखा था। हाँ बिटिया, अपने होश में पहला सदमा देखा है फर्रुख मियाँ ने। अरे नाना नानी कभी महसूस भी नहीं होने दिया बाप की कमी को। अरे वो तो जितना भी रोए कम है। बिटिया अब तुम सबर करो और उठो, नाश्ता कर लो। बिटिया नाश्ता कर लो। लो चांद नानी, मेरा बाप चला गया है बुनियादी खाला। अरे दुल्हन बीबी, खुदा आपके बाप को सलामत रखे। बाप तो हम गरीबों का चला गया, बड़े बेगम साहब के हवास चले गए। अब शाम मेरी बच्ची कोने में गई कुछ छुप के बैठे। माँ उठो चलो। मम्मा 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 मेरे अब्बू नहीं आए। नहीं जानू, उनको बहुत काम था। आएंगे कल परसों आएंगे। मैं कल से आई हूँ, तुमको खबर नहीं हुई शायद? खबर तो थी मम्मा, मगर वो फर्रुख क्या? फर्रुख मना करते क्या नहीं जाने? नहीं नहीं, अब शलीमी बहुत परेशान है। फर्रुख मियाँ का रोना नहीं देखा जा रहा है इनको। हो सच्ची बोले, हो गया यतीम बेचारा। चलो माँ उठो। नहीं मम्मा, आप मुझे ऊपर ही रहने दे। अच्छा तुम नाश्ता करे, मैं नसीर आपा के घर पोस्ता दे के आती हूँ। अब भी 15 मिनट में जानू। बेटी आप यहाँ हैं? मैं वहाँ मुस्लिम टाउन में ढूंढ रही थी ना आपको। बेटी क्या बताऊं, अपना तो पलेसा निकल गया दुल्हन। 5 रातों से जागते जागते निगोड़ी आंखें पथरा गई। अब दुल्हन, सच्ची बात तो ये है कि हमें जितना भी रोना था हम अपनी मियाँ की मौत पर रो लिए। सही बोले। अब तो निगोड़ी आंखों के आंसू भी खुश्क हो गए। हाँ। इलाही मेरी तौबा, इलाही मेरी तौबा। अरे ये आज़ाब खुदाबंदी है दुल्हन, 4 कांधों पर 2 जनाजे। इलाही मेरी तौबा, इलाही मेरी तौबा। अब हमने कहाँ दम रहा है रोने पीटने का। देख लीजिए कैसी लुटी हूँ मैं, कैसी बर्बाद हुई हूँ मैं। मेरा अली नजरों से दूर था, लेकिन मेरे दिल को तसल्ली तो थी। अब किसका इंतजार करूंगी चची जान? दुल्हन, तुमने सास की हालत देखी? हाँ, दीवाने हो गए बेचारे। कुछ तो ऐसा किए होंगे जरूर जो इतने बड़े बड़े अजाबा पड़ रहे। देखो आप दुल्हन, अब मैं क्या बताऊं, टुक टुक दी दम, दम न कशी दम।
चची जान, आप कहना क्या चाहती हैं? आज क्या साबित करना चाहती हो? येलो। चची जान, आप कहना क्या चाहती हैं? जो कहना चाहती हैं ना, साफ साफ कह डालिए। ये बताइए, आखिर मेरे ताया जान ने गरीब ने ऐसा कौन सा कसूर किया था? बताइए, कौन सा गुनाह किया था जो उन पर इतने बड़े बड़े अजाब टूट पड़े? ये बताइए, मैंने कौन सा गुनाह किया था जो मेरा अली मुझसे छिन गया? बताइए, ये सब खुदा की मर्जी थी ना? दुल्हन, इसके दिमाग में तो भर गया ताया ताई और भावत की मोहब्बत का भूता। चलो अब मैं तुम्हें बताती हूँ, सुनो। अच्छा के हाथ में मैंने खुद अंगूठी देखी और मैंने इनको बताया तो इनको यकीन नहीं आया। भाई पहना दी होगी हुस्ना ने अफशा को अंगूठी, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? आप तो खामखा बात का बतंगड़ बना देती है, बेकार का बोहतान रख रही है, इल्जाम लगा रही है। लो इल्जाम बोहतान। अच्छा ये बताओ, ये 12 बजे रात को काजी अब्बादुद्दीन क्यों बुलाए गए थे? अब वो तुम्हारे भैया आबिद और अहसन 2 बजे रात तक क्यों बैठे थे घर में? और तब तो सब लो मुझे कमरे में बंद करते वो कमबख्त बुनियादी वो बाहर से कुंडी क्यों चढ़ा गई थी? अरे हम अपने हाथ कटवा दें अगर फर्रुख और अफशा का निकाह न हुआ हो। सही बोल रहे हैं चाची जान आप। अफशा के हाथ में अंगूठी तो मैं भी देखी थी। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया। देखो आप, वाह रे वाह, ये अच्छा इंसाफ है। बाप से पूछे ना पूछे इतना बड़ा काम करके बैठ गए। अच्छा दुल्हन, इतने दिनों से तुम भी यहाँ आई हुई हो। हाँ। तुमने अफशा को नीचे उतरते हुए देखा? नहीं। फर्रुख को देखा? पेट मोड़ के खड़ी हो गई। अरे 22 मील दूर पड़े, लेकिन मिट्टी की खुशबू बता देती है कि पानी कहीं जरूर बरसता है। फर्रुख और अफशा का निकाह हो गया? हाँ, निकाह हुआ है या मंगनी, कुछ हुआ जरूर है। जब भी ये लोग देखो आप अफशा को कराची नहीं भेजे, अजामा नहीं पड़ेंगे तो और क्या होगा? अव्वल तो खुदा ने चाहा ऐसा हरगिज नहीं हुआ होगा, हरगिज नहीं हुआ होगा। और अगर ऐसा हुआ है तो अली के साथ साथ हुस्ना भी मर गई मेरे लिए। और चाची जान, अगर आपने झूठ बोला है, अगर आपने झूठ बोला है तो आप भी मर गई मेरे लिए। 100 बरस जियो, बुढ़े बुढ़े होके जियो। अल्लाह तुम्हारे बच्चों की खुशियां दिखाए मोहसिन मियां। शुक्रिया मम्मा। शहरयार बेटे। जी पापा। मेरे पास बैठो बेटे। बैठो। मजीद भाई कहाँ है? मजीद मामू क्लिनिक गए हुए हैं आपकी ब्लड रिपोर्ट लेने के लिए। तुम सबको मेरी वजह से कितनी तकलीफ हो रही है। नहीं शहरियार बाबा, तुम यहाँ बैठे रहना। देखो मोहसिन मियां के पास हल्ला नहीं। क्या बोल रही हूँ मैं? आप फिक्र न कीजिए नानी माँ, मैं यही हूँ। शहरयार बेटे। जी पापा। मेरे परिवार, तुम्हारी माँ कितनी बदनसीब और तुम्हारे दादा नवाब मुजफ्फरुद्दीन कितने खुश नसीब इंसान हैं कि तुम जैसा लायक और मुखलिस नौजवान उनके बुढ़ापे का सहारा होगा। मेरे लिए तो मेरा बेटा बेनाम भी था और मर भी चुका था। फिर ये क्या हुआ कि मैंने तसव्वुर ही में उसे जवान भी देखा और अब 4 दिन से हर लम्हे उसे मरते देख रहा हूं। पापा, मैं भी तो आपका बेटा ही हूँ। मत कहो शहरयार, ये मत कहो। तुम जिसके बेटे हो उसी के होके रहो। ये लफ्ज बेटा